We have just finished the shoot 20 days before in South India, in Tuticorin. We have come here with a 2D trailer of the movie. I invite you everyone to watch the trailer first. साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे आचार्यमुपसंगम्य राजवदनमब्रवीत् The total shooting days is 78. Out of which 66 we did it in Tuticorin, which is in Tamil Nadu near Madurai, because most of the shoot was in the middle of ocean. So we wanted a calm sea, which was not calm. Definitely, everyone said that sea was calm, but it was a very terrific experience shooting in the middle of the sea. Is it fully based on the Kama Sutra, or did you take any literary license or creative license? It's like the Kama Sutra. We have taken lots of creative freedom in it. So it's another, why this press conference is basically to tell most of you that we have two versions for the movie. One is for the Indian audience, which can be even shown in a kids channel because it's a fairy tale, and the other version is a rest of the world version, which will be like, in technical terms, we can see a hard version of this fairy tale. With that also has two different versions, because many countries, like in Korea we can have the hardest version, but in Europe only soft version. So there are basically three versions for the movie. In India, like, we are very confident to get a censor certificate because of this version. Because we did not want to lose the second biggest market in the world. Like, how will we lose 3,000 theaters? Like, if we last week, Sherlyn was in US, and when we compared the US, like for the American film market, we were there. When we compared the US market and Indian market, maybe Wikipedia or some other websites would say that we are second. We are not at all second. American industry is far behind us. They cannot release a movie in 3,000 theaters in their country. We can release. So we did not want to lose those 3,000 release theaters. That's why we have come with a Indian version also for the movie. Rupesh, do you plan post-Berlin launch to release the movie in 10 different languages, like Chennai Express and Krish 3? Of course, they're backed by huge marketing houses. But are you hoping that the Berlin, launch would get other people, big companies, interested in the movie and
organize a global launch? Before we started the shoot, we had a small research on like which languages should we shoot the movie, but we got a feedback that we should not dub the movie in any vernacular language because people will not agree to it. So we shot the movie in two different versions, Hindi straight and English straight. And luckily we have sold all the European rights except Italy and Germany, most of the Asian countries, including Korea, for prices which is almost like 80% higher than Chennai Express. So we can tell the figures because I know the figures which. So that was a big proud moment for us. In Thailand, Taiwan, Korea, UK, we could sell the movie, sell the Hindi rights and English rights of the movie for almost 80%, sometimes 110% more than the rate Chennai Express was sold. What about Spanish, Japanese, and Chinese? Because there's a huge market. China, there is no market because of the title. Though most of the 100% of the porn movies are getting printed and manufactured there, they don't approve of any semi-erotic and nothing. The word they hate so much. So, but they are the huge producers of porn DVDs and everything we know. But there is no market for this movie at all in China. So, how many languages you are planning to dub maybe later on? That's all depend upon the distributors. But personally, as a filmmaker, I would not suggest to dub this movie in any of the local languages because there are not much like it's more about the visuals. कामासूत्रा की कहानी को फिर से लेकर के आ रही हैं शर्लिन चोपड़ा, जिनकी फिल्म अगले साल में रिलीज होने वाली है, करीब 2-3 महीने के बाद। शर्लिन चोपड़ा हमारे साथ हैं। शर्लिन, इस फिल्म में काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि जो कुछ मैंने अनुभव किया, महसूस किया, वो बहुत ज़्यादा अद्भुत रहा है। और मैं न केवल एक अभिनेत्री के तौर पर बल्कि एक इंसान के तौर पर भी मुझे लगता है कि बदल गई हूँ। और इतना बदलाव होगा शूटिंग के दौरान, इसकी कल्पना नहीं की थी मैंने, लेकिन अब क्योंकि ये हुआ है, मैं बहुत 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 शुक्रमंद हूँ मिस्टर पॉल का, जो उन्होंने मुझको एक ऐसा मौका दिया कि मैं खुद को निखार सकूं व्यक्तिगत रूप से भी। शर्लिन, अगर बात करें मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों की, तो आप मिसिंग रही हैं। कुछ एक फिल्मों में आपने काम जरूर किया, लेकिन कॉमर्शियली या क्रिटिकली उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं की। खासतौर पे आपने दिल बोले हरीफा, जो यश राज बैनर की फिल्म थी, लेकिन वो मेटेरियलाइज कभी नहीं हो पाया। व्हाई? तब मैं नादान थी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी काबिलियत क्या है, योग्यता है तो कितनी है। मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, एतबार नहीं था। आज मैं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और मुझे किस किस्म का काम करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। इन बातों की समझ आज मुझे है और मैं चाहती हूँ कि इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए मैं हर वो काम जो मेरी पसंद का हो, हर वो फिल्म जो मेरी पसंद की हो, उसे मैं स्वीकार करूं और बखूबी उन फिल्मों में अलग अलग किरदारों को निभाऊं और लोगों की शाबाशी, प्रशंसा पाकर बहुत आगे बढ़ूं। शर्लिन, आप पहली इंडियन हीरोइन या ओनली इंडियन मॉडल कह लें जो कि प्ले बॉय के कवर गर्ल के तौर पे आप अपने फ़ोटो शूट करवाए थे जी। तो क्या अपने लिए एक एडल्ट मार्केट आप तलाश रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एडल्ट्स ही प्ले बॉय पढ़ते हैं। ऐसे कई टीनेज्ड बच्चे हैं जो प्ले बॉय के बारे में जानते हैं और प्ले बॉय के सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये कहना कि इरोटिक कंटेंट या सेक्सुअल कंटेंट सिर्फ एडल्ट्स के लिए होता है, ये मुझे लगता है कि गलत होगा। आज की युवा बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है, उनको पता है कि इरोटिक कंटेंट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे दर्शाया जाता है। इन बातों की समझ है उनको और
उन्हीं की वजह से इस कंटेंट की डिमांड बढ़ती है। और मैं आज यहाँ पर हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने युवा प्रशंसकों की वजह से हूँ। बॉलीवुड सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में न्यूडिटी को टैबू समझा जाता था, लेकिन क्या आपको लगता है कि न्यू एज सिनेमा में अब जो है ये सोच बदल रही है? न्यूडिटी, सेक्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे विषय हमेशा से टैबू बने रहे हैं इस देश में। इस देश में राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्म बनी और इंडिया में 2 बिलियन के लगभग लोग रहते हैं। इसके बावजूद हम सेक्स के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? मैं डबल स्टैंडर्ड्स के ख़िलाफ़ हूँ, हिपोक्रेसी के ख़िलाफ़ हूँ। मुझे लगता है कि आज ये विषय टैबू नहीं रहे। आज हम खुलकर सेक्सुअल कंटेंट को फिल्मों में दर्शा सकते हैं और उन्हें देखने के लिए हमारे पास ऑडियंस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडल्ट ऑडियंस ही सेक्सुअल कंटेंट को देखना पसंद करती है, नहीं, फैमिली ऑडियंस भी इस बात को समझने लगी है कि अगर 2 इंसानों के बीच में प्यार दिखाना हो तो किस तो बनता है, टचिंग तो बनती है। और इंटीमेसी को लेकर मुझे लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। हमारी सोच, हमारे ख़यालात, इन चीज़ों में ज़्यादा बदलाव आ चुका है। हु इज़ कॉम्पिटिटर टू शर्लिन चोपड़ा टुडे? मुझे नहीं पता, मैं ख़ुद को कंपटीशन मानती हूँ। कल मैं चाहूँगी कि आज की शर्लिन से बेहतर बनूँ, तो ये मेरा फंडा है। और आप फैमिली फिल्मों में ऑफर्स मिल रहे हैं या आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे दिमाग में इस तरह के जॉनर्स नहीं होते हैं। फैमिली फिल्म्स, अडल्ट फिल्म्स, ये फिल्म, वो फिल्म। मेरी सोच के अनुसार 2 किस्म के फ़िल्म होते हैं। इंटरेस्टिंग फिल्म्स या नहीं तो बकवास घटिया फिल्म्स। तो मुझे बकवास फिल्में बिल्कुल नहीं करनी हैं। अब उन्हें आप फैमिली फ़िल्म कहो या कुछ भी कहो, मुझे पकाऊ फिल्में बिल्कुल नहीं करनी हैं। हाँ, वैसी फ़िल्म जो ऑडियंस के इंटरेस्ट लेवल को सस्टेन कर पाए, कर सके, इस तरह की फ़िल्मों का हिस्सा बनना मुझे मंजूर है। शर्लिन, आखिरी सवाल, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपके डायरेक्टर बता रहे थे कि कास्टिंग काउच जैसा कुछ इंसिडेंट बता रहे थे, क्या आपके करियर में भी ऐसा फेस करना पड़ा आपको? कास्टिंग काउच, देखिए, हर क्षेत्र में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अब ये काउच आज मौजूद है और अगर है तो क्यों है, ये मैं नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये समझने वाली बात है कि जो लोग ख़ुद को कमज़ोर समझते हैं वो कास्टिंग काउच का सहारा लेते हैं। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि वो टैलेंटेड हैं और उनमें हिम्मत है, हौसला है, पेशेंस है, वो ख़ुद की किस्मत पर इतना भरोसा करते हैं, इतना भरोसा करते हैं कि उन्हें किसी काउच की ज़रूरत नहीं लेनी पड़ती है। तो मुझे ये कहना है उन सभी लोगों से जो इस काउच को बढ़ावा देते हैं, काउच पर लेटने से, सोने से, बैठने से, उठने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको कुछ करना हो ज़िंदगी में तो ख़ुद पर एतबार करो और ख़ुद की काबिलियत पर, और फिर देखना कि कैसे अलग अलग रास्ते खुलते हैं आपके लिए। शर्लिन चोपड़ा का कहना है कि उन्हें जो भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स मिलेंगे उस पर वो काम करेंगी। कैमरा पर्सन चेतन गवस के साथ मुकेश कुमार, प्रूडेंट के लिए।